Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit. I am Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today we have our esteemed guest speaker, Miss Dr. Hina Ali. She is a dental surgeon graduate from FMHCMD, currently working as a demonstrator and assessment coordinator in dental education department at ANDC, and she is also an health aspiring professional educationist and medical researcher. So today she will be guiding us about the impact of oral health on quality of life. So without any further ado, let's welcome our guest speaker. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Walaikum salam. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Thank you for introducing me. Firstly, I would like to thank Sindh Educational Organization for giving me an opportunity to become a guest speaker for today's session. Secondly, I would like to thank all the participants who have joined today's session. Hopefully, I will be able to deliver valuable knowledge to all of you. So, I have prepared a presentation for all of you, which I will be sharing with all of you. So, as we all know, the topic for today's presentation is impact of oral health on the quality of life. Before we begin discussing the impact of oral health on the quality of life, we will be discussing the parts of cavity. So, basically, oral cavity consists of our teeth, our cheeks, and our tongue, and the surrounding structures. So, any factor, any influence that is affecting the oral cavity will also be affecting the oral health, which will consequently be affecting the quality of life. Before I begin my presentation, I would like to mention that this presentation is in no way meant to scare anybody, but is actually meant to create awareness among the general population. So, oral diseases, as you all know, are very prevalent. However, we don't pay enough attention to preventing the oral diseases. I will be communicating in both English and Urdu so the people can understand me. Okay. सो हम में से कितने लोग हैं जो कि अपनी ओरल हेल्थ पे फोकस करते हैं? अगर हम उसका नंबर कैलकुलेट करें या फिर अगर उसकी रेशो देखें तो बहुत कम लोग हैं जो अपनी ओरल हेल्थ पे एक्चुअली फोकस कर रहे हैं, जो अपने दांतों की रेगुलर ब्रशिंग करते हैं, जो फ्लॉसिंग करते हैं और डेंटल चेकअप्स कराते हैं, क्योंकि ओरल डिजीजेस दे आर नॉट जनरली कंसिडर्ड एज एज हेल्थ डेबिलिटेटिंग डिजीजेस. इसकी वजह से उसको एक बहुत ही लो प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा जाता है. However, WHO ने अब कंसिडर किया है कि ये हमारे पास एक इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो नाउ we will be beginning with the actual presentation, which is the impact of oral health on the quality of life. So what is oral health? So according to World Health Organization, oral health is basically the state of the mouth, teeth, and orofacial structures that enables individuals to perform essential functions such as eating, breathing, and speaking. And it encompasses psychosocial dimensions such as self confidence, well being, and the ability to socialize and work without pain, discomfort, and embarrassment. Oral health varies over the life course from early life to old age, is integral to general health, and supports individuals in participating in society and achieving their potential. So as you can see, WHO ने एक प्रॉपर डेफिनेशन ओरल हेल्थ की हमें दे दी है, जो कि इंडिविजुअल्स देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिससे हमें ये भी पता चल रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंट है ओरल हेल्थ, और कोई भी फैक्टर जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है. ठीक है. सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ ओरल हेल्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. There is basically a direct relation between oral health and the overall quality of life. There are different factors that are actually affecting oral health, which are consequently impacting the overall quality of life as well. अब हमें एक ये चीज पता है कि हर इंडिविजुअल की डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है. उसका साइको सोशल एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, उसके अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है. तो जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसकी ओरल हेल्थ को, वो उसकी उसी के स्पेसिफिक होंगे. ठीक है. सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट और असेस द ओरल हेल्थ इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल और इन अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल, वी हैव टू सी कि कौन कौन से फैक्टर्स उस इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहे हैं. समटाइम्स वी कैन नॉट जनरलाइज all the factors for all the individuals, because oral health related quality of life is different for everyone and every single person there is to be in the population. So oral health related quality of life
basically encompasses different dimensions, as you can all see in the presentation. These dimensions are oral health related dimensions, psychosocial dimension, environmental dimension, treatment expectations, as well as function. ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो अपने दांतों के लिए किसी डेंटिस्ट को परस्यू कर सकता है. ओके, सो एज आई वाज डिस्कसिंग कि जो हमारे डिफरेंट डायमेंशंस हैं ओरल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ में, उसमें सारे ये डायमेंशंस आ जाते हैं. आई विल रिपीट देम अगेन, जिसमें हमारी ओरल हेल्थ आ जाती है, फंक्शन आ जाते हैं, ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं, इन्वायरमेंट आ जाती है, सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो ओरल हेल्थ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसमें हमारे पास आ जाती हैं पेन, ब्लीडिंग गम्स, स्पेसेस बिटवीन टीथ. नॉर्मली जब हमें से किसी को भी दांत में जब दर्द होती है या ब्रशिंग करते हुए हमारे मसूड़ों से खून निकल रहा होता है, या अगर हम देखते हैं कि बचपन में बच्चों के दांतों में स्पेसेस होती हैं, तो उस वजह से इंडिविजुअल्स दे कैन परस्यू द डेंटिस्ट एज वेल. फिर सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट को हम देखें तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम एंक्शियस होते हैं, हम अनहैप्पी होते हैं बिकॉज ऑफ द जनरल अपीयरेंस ऑफ आवर टीथ. व्हेन वी लुक एट द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, तो उसमें हमारे जब हमने स्कूल में जाना होता है, हमने जॉब्स के लिए जाना होता है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वी हैव टू सी आवर सोशल अपीयरेंस. वो बहुत मैटर करती है व्हेन वी आर आउट देयर इन द वर्ल्ड. नॉर्मली जब हमारे फंक्शन भी ऑल्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल चूइंग एंड टॉकिंग, तो उसकी वजह से भी इंडिविजुअल्स दे कैन परस्यू द डेंटिस्ट. और एंड पे हमारी आती है ट्रीटमेंट एक्सपेक्टेशंस, कि नॉर्मली व्हेन पीपल आर परस्यूइंग द डेंटिस्ट दे एक्सपेक्ट देयर ट्रीटमेंट टू बी वेरी satisfactory, so that optimal oral health conditions can be maintained. So we have to discuss the link between oral health and overall well-being now. So basically we have three aspects जिसमें हमारे पास systemic diseases आ जाती हैं. Systemic diseases basically वो diseases होती हैं जो कि काफी हमारे body parts को affect कर रही होती हैं. उसमें से एक example है डायबिटीज. डायबिटीज जो है एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारे ग्लूकोज लेवल्स ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं. When glucose levels in the blood are increased, वो negatively impact करती हैं हमारी oral health को. उसके बाद हमारे पास आता है इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम में आपको पता है हमारे डिफरेंट इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम सर्टेन डिजीज. एंड इन दी एंड हमारे पास आते हैं न्यूट्रिशनल इंटेक. न्यूट्रिशनल इंटेक में हमारे पास ऑब्वियसली जब हमारी ओरल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, उससे होगा ये कि हम खाना नहीं प्रॉपर खा सकेंगे, हमारे वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज प्रॉपर न्यूट्रिशनल इंटेक इज नॉट बीइंग टेकन बाय द इंडिविजुअल. तो अगर हम इनको इंडिविजुअली डिस्कस करें तो सिस्टेमिक डिजीजेस में हमारी जो ओरल हेल्थ को जो अफेक्ट कर रही हैं, वो हमारी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगी. इसमें सर्टेन एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज आ जाता है, डायबिटीज जिसके बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आ जाती हैं, क्रॉनिक पेरियोडोंटाइटिस. ये एक पिक्चर है जो मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाई थी कि नॉर्मली हर इंसान में हेल्दी गम्स जो हैं वो दांतों के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट में आ रहे होते हैं, ठीक है. बट अगर आप इसमें साथ में ही एक और पिक्चर देखें दांतों की, तो इसमें आपके जो मसूड़े हैं विच आर ऑल्सो कॉल्ड द गम्स, वो अपने लेवल से बहुत नीचे जा चुके हैं. इसकी वजह से ये होता है कि हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो कि पेरियोडोंटाइटिस कहलाती है, वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसमें हमारे गम्स का लेवल बहुत नीचे जाता है, हमारा बोन लॉस होता है और हमारी टूथ मोबिलिटी स्टार्ट हो जाती है. और नॉर्मली ये ओल्ड एज पेशेंट्स को अफेक्ट करती है. जनरली जब आप बचपन से अपनी ओरल हाइजीन पे ध्यान नहीं देंगे, इफ यू डोंट डू रेगुलर ब्रशिंग, रेगुलर फ्लॉसिंग, रेगुलर डेंटल चेकअप्स, you will ultimately develop this periodontal disease, which is very hard to treat if not treated properly. Then we'll discuss immune system. जिसका मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे कुछ सर्टेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ब्लड के अंदर जो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी को सर्टेन डिजीजेस से. However, जब अगर हमारी ओरल हेल्थ ही ठीक नहीं है, there are some oral bacteria which can enter our bloodstream and can affect other parts of the body, and then they can impair with the normal immune system function. So basically, maintaining good oral health supports a robust immune system, and it also reduces the risk of infection. And thirdly, nutritional intake. Dental problems obviously can cause many nutritional intake problems, and it can make it challenging to eat a balanced diet. So if you can see in the picture,
when you have an eating impairment due to the oral health problems, it affects food choices, and certainly you will obviously eat sugary food and sugary sodas if you can't eat solid food. So sugary diet consequently affects the oral cavity, and it will in turn cause periodontal problems, as I discussed. So what are the so how do dental diseases impact the quality of life? So the first issue that actually develops in the oral cavity and in the teeth when there's improper oral health hygiene and oral hygiene measures is tooth decay, which actually encompasses cavities which can cause pain, sensitivity, and difficulty in chewing. टूथ डिके इज बेसिकली कॉल्ड जो आम जबान में अगर हम उसको कहें उर्दू में कीड़ा कहते हैं दांतों का, ठीक है, और कैविटीज इंग्लिश में बोलते हैं। तो सबको अगर पता चल गया होगा कीड़ा, क्योंकि नॉर्मली हम इसको रेफर कैविटी से ही करते हैं, लेकिन क्योंकि परसेप्शन ये बन चुकी है सब इसको दांतों का कीड़ा कहते हैं, विच इज रॉन्ग टू से। सो आई विल बी मैं थोड़ा क्लियर कर दिया आपके लिए कि ये हमारे कैविटी कहलाती है, टूथ डिके। सो जब कैविटीज डेवलप होंगी तो ऑब्वियसली हमारे दांत में पेन भी होगी, सेंसिटिविटी भी होगी और च्यूइंग प्रॉब्लम्स भी होंगी। दूसरी चीज है कि गम डिजीज। गम डिजीज कैन लीड टू टूथ लॉस, बोन लॉस एंड बैड ब्रेथ। जैसे मैंने आपको बताया कि गम डिजीज इज बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड पेरिडोंटल डिजीज। इट कैन लीड टू टूथ लॉस, बोन लॉस एंड बैड ब्रेथ, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पेयर होगा, सोशल इंटरेक्शंस भी इम्पेयर होंगी। तीसरी चीज हमारे पास है ओरल कैंसर। जो अगर ओरल हेल्थ हमारी ऑप्टिमल नहीं है, इट इनडायरेक्टली अफेक्ट्स ओरल कैंसर डेवलपमेंट एज वेल, क्योंकि जब हम अच्छी ओरल हाइजीन नहीं रखेंगे तो हमारे पास सर्टन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं माउथ के अंदर, सलाइवरी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिजीजेस से, वो इम्पेयर होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस डेवलप होंगे। तो ओरल कैंसर एक ऐसी ऑब्वियसली बीमारी है जो कि इस वजह से डेवलप हो सकती है, एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट विच कैन इम्पैक्ट योर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबीइंग। एंड लास्टली वी हैव TMJ डिसऑर्डर्स। टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो कि हमारे मैंडिबल यानी जॉ बोन को और स्कल को कनेक्ट कर रहा होता है। तो अगर हमारी ओरल हेल्थ ऑप्टिमल नहीं है तो इट ऑल्सो इनडायरेक्टली अफेक्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हमारी माउथ ओपनिंग लिमिटेड हो सकती है, हमारी च्यूइंग इम्पेयर हो सकती है, जिसकी वजह से और भी बहुत से साइकोसोशल एस्पेक्ट्स इम्पैक्ट होते हैं, जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है डिप्रेशन या एंजाइटी में जा सकता है। सो now I will discuss what are the oral health challenges in different age groups. तो नॉर्मली जब अगर हम एज ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं तो हम 3 एज ग्रुप्स को देखते हैं, which are children, adults and seniors. Children are mostly more susceptible to tooth decay क्योंकि उनकी developing teeth होती हैं, उनकी habits ऐसी होती हैं, they are not regular in brushing teeth, वो ना फ्लॉस कर पाते हैं because they can't floss their teeth properly क्योंकि उनकी इतनी अच्छी हैबिट्स नहीं होती कि वो प्रॉपरली फ्लॉस कर सकें, और कभी कभार पेरेंट्स भी इतना प्रेशर बच्चों पे नहीं डालते कि वो ज़्यादा ब्रशिंग की तरफ जाएं और उनकी ओरल हाइजीन हैबिट्स जो है वो बेहतर हों। दूसरी बात ये कि बच्चों की डाइट आपको पता ही है सबको कि बहुत शुगरी डाइट होती है, जिसकी वजह से ओरल जो हमारे जो कैविटीज हैं वो डेवलप बहुत जल्दी होती हैं बच्चों के अंदर। So it's crucial to instill good oral hygiene practices in the children from their early stages in life. दूसरे आ जाते हैं, we have our adults. Adults they experience changes in their oral health, जिसमें हमारी gum disease आ जाती है, periodontal disease आ जाती है, different other oral diseases आ जाती हैं. लेकिन it's easier for adults to understand the importance of oral hygiene habits. और अगर हम एक consensus देखें इस जनरल पॉपुलेशन में नॉर्मली एडल्ट्स जो कि हमारी अर्ली 20s से लेके लेट 40s तक एक हमारी जो एज पॉपुलेशन है वो अपने दांतों का बेहतर ख्याल रखते हैं एज कम्पेयर टू चिल्ड्रन एंड सीनियर्स। तीसरा आ जाते हैं जो एज ग्रुप है हमारे पास सीनियर्स हैं, वो दे फेस यूनिक ओरल हेल्थ चैलेंजेस क्योंकि उनका ड्राई माउथ होता है, हमारी ओल्ड एज में ड्राई माउथ स्टार्ट हो जाता है, टूथ लॉस हो जाती है ड्यू टू सर्टन कंडीशंस जो कि लेटर इन लाइफ डेवलप करती हैं, उसमें हमारी मेडिकेशंस आ जाती हैं जो कि डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती हैं ओरल हेल्थ रूटीन।
सीनियर्स ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि अक्सर हमारे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं उनसे उनकी थोड़ी-सी इम्पेयर्ड मूवमेंट्स होती हैं। वो प्रॉपर्ली अपने दाँतों को ब्रश नहीं कर पाते हैं और प्रॉपर्ली एक जो तरीका होता है ब्रश करने का वो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स डेवलप होती हैं और उसकी वजह से हमारी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं और उनके अंदर भी सीनियर्स के अंदर ये ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप होना बहुत कॉमन हो चुका है। तो हमारी जैसे हम एडल्ट्स हैं, हमारी जो एज ग्रुप है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक तो अपने बच्चों को और साथ-साथ अपने सीनियर्स को गाइड करें, अवेयरनेस दें फॉर प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स और एक अर्ली एज से उनको बताना चाहिए बच्चों को स्पेशली कि द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्प्लिकेशंस ऑफ ओरल हेल्थ इश्यूज़। जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि सर्टेन डिजीजेस हैं जो कि डेवलप होती हैं अगर हम अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल ना रखें और ओरल हाइजीन प्रॉपर ना रखें तो जब हमारे दांत जो है खराब लगेंगे, दांत येलो नजर आएंगे। अक्सर एक जो चीज जो नॉर्मली हम जनरल पॉपुलेशन में कह रहे होते हैं कि मेरे दांतों का कलर खराब हो रहा है या दांत येलो येलो से लग रहे हैं, इट इज बेसिकली द टीथ डिस्कलरेशन दैट इज कॉजिंग द येलोइंग ऑफ द टीथ। हमारी दूसरी चीज जो है कि हमारे अगर आपने देखा होगा अक्सर दांतों के और गम के दरमियान एक मास्कुरा या कैलकुलस सा डेवलप हो जाता है, ठीक है, और वो भी दांतों पे नजर आता है जिसकी वजह से एक कह लें सेल्फ स्टीम और अपीयरेंस जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो पहला इफेक्ट जो हमारी जो सोशल और साइकोलॉजिकल और सोशल इम्प्लीकेशन में जो आता है वो हमारी सेल्फ स्टीम पे आता है कि देखिए बिकॉज द डेंटल इश्यूज कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, affecting social interactions, relationships, and career opportunities. ये एक बायस डेवलप्ड है हमारी कंट्री में, आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एक बायस हो चुका है कि नॉर्मली जिसकी स्माइल अच्छी लग रही है, जो कि जिसकी अपीयरेंस अच्छी है, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दी जाती हैं एज कम्पेयर टू समवन हु डजंट हैव अ गुड स्माइल। तो ये बायस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, बट इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। So it's really important for everyone to keep a good oral hygiene ताकि उनकी self esteem कम ना हो और एक overall general outlook and appearance of them should look better to the general society ताकि उनको career opportunities मिलें। दूसरी चीज़ ये है कि सोशल एंग्जाइटी हमारे पास नॉर्मली इंडिविजुअल्स जो आ रहे हैं डेंटल प्रॉब्लम्स के साथ दे डू अवॉइड सोशल सिचुएशंस क्योंकि उनको अपनी अपीयरेंस का इशू होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया आपके साथ कि सोशल एंग्जाइटी अपनी अपीयरेंस की वजह से होना एक बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत प्रेवलेंट है हर जगह पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स प्रेवलेंट। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्योंकि आ रहा है पुअर ओरल हाइजीन हैबिट्स की वजह से, इसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सोशली एंशियस होंगे यू विल नॉट बी ग्रैबिंग एनी करियर अपॉर्चुनिटी, जो कि आज की दुनिया में आज के दौर में इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू हैव गुड जॉब्स। तो अगर आप सोशली एंशियस होंगे ना आप प्रॉपर्ली इंटरव्यू दे सकेंगे, ना आप प्रॉपर्ली मूव अराउंड कर सकेंगे सोसाइटी में। ये एस्पेक्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में और मैं आपके लिए अवेयरनेस इसीलिए क्रिएट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ फेस ना करनी पड़े इन योर लाइफ। जो तीसरी चीज़ है वो हमारी मेंटल हेल्थ है, जिसमें क्रॉनिक ओरल पेन और डिस्कम्फर्ट कैन कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप देखें, सेल्फ एस्टीम, सोशल एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ, थ्री ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। तीनों चीजें जब आपस में तीनों चीजें ठीक नहीं होंगी, सेल्फ एस्टीम लो है तो आपकी सोशल एंजाइटी डेवलप होगी और एंजाइटी कॉन्सिक्वेंटली डेवलप्स इनटू डिप्रेशन। तो अगर आप अपनी ओरल हेल्थ या ओरल हाइजीन को अच्छा रखेंगे, आप ये डेफिनेटली देखेंगे कि आपके सेल्फ एस्टीम, सोशल एंजाइटी और मेंटल हेल्थ तीनों एस्पेक्ट्स बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे क्योंकि आज का जो दौर है इसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं सोशल एंजाइटी को, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और लो सेल्फ एस्टीम या इम्पेयर्ड सेल्फ एस्टीम। सो इफ अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का जो एस्पेक्ट है उसको अच्छा बना लें या बेहतर बना लें तो आप एटलीस्ट उस एस्पेक्ट को से आप परेशान नहीं होंगे विच इज अफेक्टिंग योर सेल्फ एस्टीम, सोशल एंजाइटी या और योर मेंटल हेल्थ। So I hope I'm clear in this aspect.
तीसरी चीज हमारे पास फिर आता है कि जो न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट क्या होते हैं हमारी ओरल हेल्थ प्रॉब्लम पे। सबसे पहले तो जब अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम देयर वुड बी न्यूट्रिशनल और वेट लॉस ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑल जो फूड ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वेजिटेबल्स, ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर हम डेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी प्रॉपर फूड इनटेक ही नहीं ले पा रहे तो इट वुड कॉन्सिक्वेंटली लीड टू वेट लॉस एज वेल और रिड्यूस्ड फूड इनटेक, जिसकी वजह से हमारे पास तरह तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाएंगी। और ऑब्वियसली जो आपको इम्पैक्ट पता है कि व्हेन देयर इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देयर इज नॉट ओनली वेट लॉस बट आल्सो देयर इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द साइकोसोशल एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये सारी अगर आप देखें, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, सारी चीजें एक दूसरे को अफेक्ट कर रही हैं। तो हेंस जो ओरल हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो सारी एस्पेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आप एक एस्पेक्ट को यानी ओरल हेल्थ से स्टार्ट करें, अगर उसको बेहतर बनाना शुरू करें तो यू विल कॉन्सिक्वेंटली इंप्रूव ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो अभी तक तो मैंने आपसे ये चीजें सारी डिस्कस की थी, ऑल द एस्पेक्ट्स आर डिस्कस्ड विद यू, जिसमें जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही होती हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ को। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सम स्ट्रैटेजीज which you can use for improving the oral health and the quality of life. So, first technique or first preventive measure that you can adopt in your life is that you can start brushing regularly. अक्सर ऐसा होता है कि हम जॉब पे जा रहे हैं या हम काम पे जा रहे हैं, हम ब्रश करना भूल जाते हैं या हमें जल्दी होती है तो हम ब्रश करना भूल जाते हैं। बच्चों का भी ये होता है, उन्होंने स्कूल जाना होता है, वो ब्रश करना भूल जाते हैं। पेरेंट्स अक्सर यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ब्रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज समथिंग एक्चुअली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में इनकाउंटर किया है कि जब मैं बच्चों की डेंटल हाइजीन देखती हूँ या मैं इवन बड़ों की डेंटल हाइजीन देखती हूँ और मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या ऐसी वजह है कि आप डेंटल ब्रशिंग आपने लाइक परसिस्टेंट डेंटल ब्रशिंग क्यों नहीं रखी, तो वो आगे से यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हमने कोई और जरूरी काम करना था या हमें मौका नहीं मिला या हमें अवेयरनेस नहीं थी। ठीक है, तो आगे मैं फिर उनको यही चीज कहती हूँ कि सबसे पहले अगर आप अपनी ब्रशिंग को रेगुलर रखेंगे, आप बहुत हद तक, और ब्रशिंग को रेगुलर आपने शुरू से रखना है, ये नहीं कि इस ऑब्वियसली अगर कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो अभी तक नहीं कर रहे ब्रशिंग या जिनको इस प्रेजेंटेशन के बाद अवेयरनेस मिली है, वो अब से ब्रशिंग शायद स्टार्ट करना शुरू कर दें। लेकिन अगर आपके बच्चे हैं, आप उनको अभी से अगर यंग एज से स्टार्ट करवाएंगे ब्रशिंग, तो बड़े होकर उनको एडल्ट लाइफ में उनको कोई ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होंगी या बहुत हद तक वो प्रिवेंट की जा सकती है अगर आप बचपन से ही उनको ब्रशिंग की टेक्निक डालो। ठीक है, ब्रशिंग की आप आदत डालो। So, if you brush regularly and if you brush your teeth twice daily for 2 minutes each time using fluoride toothpaste, you can prevent a lot of dental conditions and you can prevent the development of dental caries. रेगुलर ब्रशिंग के साथ मैं पेशेंट्स को ये भी एडवाइस करती हूँ कि वो अपनी ब्रशिंग टेक्निक्स को जो है जो भी वो उन्होंने अडाप्ट की हुई है ब्रशिंग टेक्निक्स, उसको प्रॉपर करें। ठीक है, आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू के जब भी अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक देखना चाहें, यू कैन वॉच अ वीडियो ऑन यूट्यूब on how to adopt a proper brushing technique. Improper brushing techniques can also have a consequence on your quality of life. So, if you want to improve your oral health, you can start brushing regularly twice a day. एक आप नाश्ते जब सुबह उठते हैं नाश्ते के बाद ब्रश कर सकते हैं और रात को सोने से पहले। दूसरी चीज ये है कि आपने एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक को अडॉप्ट करना है। ठीक है, दूसरी चीज यू कैन स्टार्ट यूजिंग डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन इट्स एन इम्पॉर्टेंट टूल टू प्रिवेंट ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। फ्लॉसिंग बेसिकली रिमूव्स प्लाक, जो हमारे दांतों पे अगर आपने देखी होगी येलो सी लेयर होती है वो प्लाक कहलाती है। सो फ्लॉसिंग रिमूव्स प्लाक एंड और द फूड डेब्रिस फ्रॉम बिटवीन द टीथ वेयर अ टूथब्रश कैन रीच। तो जहाँ जिन एरियाज में हमारे टूथब्रश नहीं पहुंच सकता वहां पर आप फ्लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज है कि वी कैन यूज माउथ वॉश। माउथ वॉश a lot of people do use mouthwash, लेकिन माउथ वॉश की भी प्रॉपर टेक्निक होती है उसको यूज करने की।
So if you use the proper technique, you can also prevent oral health problems by this preventive measure. And regular checkups. I always advise my patients to at least have 6 monthly dental visits, क्योंकि जितनी आप डेंटल विजिट्स करवाएंगे उतना ही आपके कोई अगर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि जिस दैट नीड्स टू बी एड्रेस वो एड्रेस होगी एंड ऑल योर ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, क्योंकि डेंटिस्ट को फौरन पता चल जाते हैं, हम जैसे ही पेशेंट का ओरल कैविटी पेशेंट की ओरल कैविटी देखते हैं उसकी सारी डेंटल कंडीशंस का हमें पता चल जाता है, तो हम पेशेंट को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं फॉर ऑल द वेज दैट दे कैन इम्प्रूव देयर ओरल हाइजीन and incorporate better oral hygiene measures. So, in conclusion, I always advise my patients to prioritize oral health for a better quality of, because oral health is an integral part of overall well-being. अगर आप अपनी ओरल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे और प्रोफेशनल केयर को सीख करेंगे, आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत हद तक बेहतर बना सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पियर फ्यूचर को एंजॉय कर सकते हैं। ये ना सिर्फ ये आप लोगों के लिए बल्कि आपने मेरे सेशन के बाद बच्चों को, बड़ों को, सबको आपने अवेयरनेस देनी है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल हेल्थ ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ. So I have put a poster or picture here where you can see that if you have a better oral health or oral well-being, it can increase your confidence and self-esteem. It can prevent oral diseases. It supports better nutrition, a healthier gut. So all these aspects that are mentioned on the picture, these are basically a conclusion of the presentation that I have presented today. I will be concluding this session now. Thank you. Any questions? Thank you so much, ma'am, for this detailed explanation. और participants अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो kindly आप अपना hand raise करें या आप chat में questions पूछ सकते हैं. Ma'am, we have questions in the chat. Dr. Rina? अच्छा जी जी अच्छा मुझसे पूछा है कि how does poor oral health contribute to other health issues such as cardiovascular diseases or diabetes. ठीक है, cardiovascular diseases basically develop ऐसे they don't develop directly because of oral cavities. बेसिकली हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं माउथ के अंदर, तो जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, ठीक है, they can enter the internal lining of the heart, which can actually affect or cause inflammation of that specific muscle tissue of the heart, which can in turn lead to cardiovascular diseases. So basically it's because of the microbiome or microbiota of the oral cavity that can actually indirectly affect the cardiovascular health or cause cardiovascular diseases. दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि येलोइंग ऑफ द टीथ वो रिपीट कर लें, ठीक है. सो बेसिकली जब आप बहुत अरसे के लिए ब्रशिंग नहीं कर रहे होते तो एक हमारे पास एक प्लाक, एक लेयर होती है जो कि येलोइश लेयर होती है, वो दांत पे डेवलप करना शुरू हो जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो वो येलोइंग ऑफ द टीथ इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्लाक एंड द डेंटल डिब्री जो कि एक्यूमुलेट करता है हमारे दांतों के ऊपर. तो अगर हम अपनी ब्रशिंग टेक्निक अच्छी नहीं रखेंगे तो वो, या ब्रशिंग रेगुलर नहीं करेंगे, वो येलोइंग दांतों पे ओवर द टाइम डेवलप होती रहेगी और वो कॉन्सिक्वेंटली डेवलप करेगी डेंटल कैल्कुलस में, जो कि जिसको उर्दू जबान में मास्कोरा भी कहते हैं, ठीक है. तो इसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप साल में एटलीस्ट दो दफा डेंटल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग कराएं ताकि आप इन सारी चीजों को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है. what are the causes of sensitivity and how to overcome? So basically sensitivity develop इस तरह करती है हमारी, जब मैंने आपको जैसे पेरिडोंटल डिजीजेस का बताया है कि जब पेरिडोंटल डिजीज होती है हमारी गम्स रिसीड करना शुरू हो जाती है, ठीक है. गम रिसेशन से होता ही है कि हमारी जो आउटर, हम अगर आप देखें तो जब हवा हमारे दांतों पे लगती है, ठीक है, इट बेसिकली इंटरैक्ट्स विद द डेंटिनल ट्यूब्यूल, ठीक है. डेंटिनल ट्यूब्यूल्स बेसिकली जो हमारी डेंटिन है जो कि दांत का एक स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके अंदर ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड मूव कर रहा होता है. तो जब हवा लगती है उस दांत को तो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स का जो फ्लूइड है दैट इज उसको अफेक्ट होता है, ठीक है, उसको उस पर अफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी फील होती है. तो आप सेंसिटिविटी को ओवरकम करने के लिए यू कैन यूज
all the toothpaste that can actually prevent sensitivity, जिसमें हमारे पास पेराडोंटिक्स आ जाता है टूथपेस्ट, जो कि हम यूज कर सकते हैं आफ्टर डेंटल स्केलिंग. Good food for healthy teeth में आप you can eat all the foods that have a low glycemic index. जो sugary food ना हो, जैसे आप vegetables खा सकते हैं. You can have good protein sources like eggs, meat, and all the sources of good protein. ठीक. Can poor oral health affect my ability to enjoy my favorite foods or hobbies? Definitely. आप खुद ही अगर इस चीज को देखें कि अगर आपकी पूर ओरल हेल्थ है, आपके दांत ठीक नहीं है, आपके दांत हिल रहे हैं, या आपकी गम रिसेशन हुई हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतनी सेंसिटिविटी होगी कि ना आप चाय पी सकते हैं, ना कॉफी पी सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको दांतों में फील होगा कि दर्द है. ठीक है, और आपको फील होगा कि कोई आपको चीज लग रही है दांतों, बिकॉज लाइक वो मैं आम जबान में बोल रही हूँ क्योंकि पेशेंट्स नॉर्मली इस कंप्लेंट से आते हैं. ठीक है, सो इफ यू डोंट हैव अ गुड ओरल हेल्थ, यू कैन एंजॉय योर फेवरेट फूड. आपसे सॉलिड फूड नहीं खाया जाएगा, दांतों में आपके दर्द होगी, कैविटी होगी दांतों में, तो आप ऑब्वियसली आपको इतनी पेन होगी कि यू कैंट हैव गुड फूड एज वेल, और आपकी न्यूट्रिशन भी उस तरह इम्पेयर हो. हाउ डज ओरल हेल्थ अफेक्ट सेल्फ एस्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन? मैंने जैसे ही आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, आपको मैंने इस बारे में बताया था कि ओरल हेल्थ की वजह से सेल्फ एस्टीम और सोशल इंटरेक्शन कैसे अफेक्ट हो रही हैं. तो अगर आपके दांतों की अपीयरेंस अच्छी नहीं है, आपको अपनी ओवरऑल अपीयरेंस भी अच्छी नहीं लगेगी. ये चीज आजमाई भी बात है कि नॉर्मली जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि उनका एक जनरल परसेप्शन जो है कि लोग उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या ऐसी वजह है जो आपको लगती है, तो वो ये कहते हैं कि या तो मेरे मुंह से ऐसी बैड ब्रेथ है मेरी कि जिसकी वजह से लोग मुझसे भागते हैं, या लोग मेरे मुझसे बात नहीं करते, या फिर मेरे दांतों की अपीयरेंस अच्छी नहीं है जिसकी वजह से लोग बात नहीं करते. तो एंड पे जब व्हेन आई गिव देम अ सॉल्यूशन, सो आई टेल देम कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ या ओरल हेल्थ अपीयरेंस अच्छी करेंगे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली यू विल आल्सो गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट आर इन योर माइंड एज वेल. कि सेल्फ एस्टीम और सोशल इंटरेक्शन जो है वो हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी तो हम उतने ही सोशली इंटरेक्टिव भी होंगे. और अगर हमारी ओरल हेल्थ अपीयरेंस अच्छी नहीं है, तो ना हम ज्यादा सोशली इंटरेक्ट करेंगे, और हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो उतनी ही पुअर होगी, क्योंकि ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन लीड टू depression and anxiety. What are the good options for a 70-year-old teethless person? Fixed dental implants, denture, what would you advise? ठीक है, अच्छा डिपेंड करता है कि आप जो 70-year-old teethless person जिसके बारे में आप बता रहे हैं, dentless person बेसिकली उनका ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों में आप क्या कोई भी एक भी दांत है अवेलेबल या नहीं है. अब हम नॉर्मली जब हमने किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शन देना होता है तो हम उनके पूरे मुंह को असेस करते हैं. ठीक है, ऊपर वाले जबड़े को, नीचे वाले जबड़े को हम असेस करते हैं, हम देखते हैं कि कितने दांत हैं जो हेल्दी टीथ हैं, कितने दांत हैं जिनकी एक्सट्रैक्शन होने वाली है. तो अगर तो कोई हेल्दी टीथ प्रेजेंट है और पेशेंट की चॉइस है, तो हम उनको डेंचर भी दे सकते हैं. ठीक है, डेंचर जो है वो एक रिमूवेबल प्रोस्थेसिस होता है, जो कि हम एक्रिलिक डेंचर्स नॉर्मली, जो कि रिमूवेबल प्रोस्थेसिस और मेटल डेंचर्स भी होते हैं जो हम पेशेंट्स को दे सकते हैं. बट इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट की चॉइस क्या है, और पेशेंट की ओरल हेल्थ कंडीशन क्या है, और पेशेंट किसी डिजीज से तो नहीं गुजर रहा, फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. और फिक्स्ड डेंटल इम्प्लांट्स नॉर्मली दे रिक्वायर अ बेटर डेंटल बोन हेल्थ. तो अगर बोन हेल्थ अच्छी नहीं है, तो if the patient is suffering from a root canal condition, what treatment would you suggest despite removal? Okay, root canal condition, root canal treatment is an entire process. ठीक है, so जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है ऐसी कंडीशन में, तो जिसमें उसको दांत में दर्द है काफी, या बहुत सेंसिटिविटी फील हो रही है, या उसको नॉर्मली एक सर्टेन एस्पेक्ट में लेट्स सपोज अगर वो लेटा हुआ है उसको वो दर्द हो रही है फील, या नॉर्मली रात के टाइम उसको दर्द ज्यादा फील हो रही है, तो पेशेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि वो अपने डेंटल एक्सरे करवाएं. ठीक है, डेंटल एक्सरे से हमें बेसिकली पता चलता है कि जो दांत में जो कैविटी है, जो दांत की कैविटी है, ठीक है, वो कितनी पहुंच चुकी है, लाइक दांत का जो पल्प है उसके करीब. अगर तो वो बहुत ज्यादा दांत के पल्प के करीब है, वी नॉर्मली रिकमेंड अ रूट कैनाल प्रोसीजर, जिसमें बेसिकली वी रिमूव द टीथ पल्प, जितने भी दांत इन्वॉल्व होते हैं उनके अंदर. ठीक है, सो व्हेन वी रिमूव द पल्प, द एंटायर प्रोसीजर इज कॉल्ड द रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रोसीजर.
So normally this is what is recommended, and extractions are at best avoided, क्योंकि जो दांत हमारा एक दफा चला गया है वो तो वापस नहीं आने वाला, right? So root canal treatments are one of the best alternatives, or one of the best safest procedures that you can actually have your dentist do to your teeth, so you can prevent the extraction of the teeth. What are the psychological effects of chronic oral health issues like persistent bad breath or tooth loss? So और जैसे मैंने आपको बताया कि persistent bad breath से तो आपकी self esteem, social anxiety, depression develop होगी, right? People would not generally want to talk to you, or because this is something that actually happens, ठीक है? मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो इस कंप्लेंट से आते हैं कि people are generally not talking to them because maybe they have a bad breath, या उनकी दांतों की अपीयरेंस ऐसी है जिसकी वजह से लोग उनसे जो है वो दूर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आप, अगर आपकी बैड ब्रेथ है, you would be embarrassed yourself to interact with anybody. So एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो ये होता है कि आपको फिर सोशल लोनलीनेस स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज यू आर सो अफ्रेड टू टॉक टू एनीवन, और यू आर सो अफ्रेड इफ एनीवन विल टॉक टू यू, दे विल अल्टीमेटली स्मेल योर बैड ब्रेथ, जिसको हम हेलिटोसिस भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, ठीक है? तो वो अगर आप उसकी वजह से यू कैन हैव ऑब्वियसली एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज वेल एंड सोशल लोन. और टूथ लॉस मैंने आपको बताया है कि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये हो सकते हैं कि ओवर द टाइम जब दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, आपसे बोला नहीं जाएगा सही, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एंजाइटी भी डेवलप हो रही है, क्योंकि आप ना बोल सकते हैं, ना खा सकते हैं, अपने फेवरेट फूड को एंजॉय नहीं कर सकते. तो ये चीजें सारी इंटरलिंक हैं अगर आप देखें एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ. किसी ने मुझे पूछा हुआ कि हाउ टू गेट रिड ऑफ येलो टीथ. तो सबसे पहले तो आपने दांतों की सफाई करानी है, विच इज डेंटल स्केलिंग एंड डेंटल पॉलिशिंग. डेंटल स्केलिंग में हम करते ही हैं कि वी हैव अ डिवाइस कॉल्ड डेंटल स्केलर, जो कि हम दांतों के अराउंड यूज करते हैं टू रिमूव द डेंटल कैलकुलस. और दूसरी चीज विच यू कैन डू इज कि डेंटल टीथ वाइटनिंग. ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम दांतों को 1 से 2 या जितना पेशेंट चाहते हैं उतना हम शेड लाइटर कर सकते हैं टू प्रिवेंट द येलोइंग ऑफ द टीथ. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है. कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं या बचपन से डेवलप होती हैं, जिनमें ना तो स्केलिंग अफेक्ट करती है ना ही वाइटनिंग प्रोसीजर, ठीक है? उन पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं कि हम ब्लीचिंग, कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं जो कि किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट दैट ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द, ठीक है? Explain flossing in details please, and what is the flossing technique. So I would recommend कि आप क्योंकि फ्लॉसिंग एक ऐसी चीज है कि आपको वो विजुअल, अगर कोई वीडियो अगर आपके पास हो या विजुअल प्रेजेंटेशन में ही आपको बेहतर नजर आएगी. बट नॉर्मली हम फार्मेसीज पे वी हैव दिस डिवाइस जिसको हम डेंटल फ्लॉस भी कहते हैं, आपको नॉर्मली मिल जाएगी फार्मेसी पे, ठीक है? एंड इट हैज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन इट, और आप उसको यूज कर सकते हैं इन बिटवीन योर टीथ, क्योंकि वहां पर ब्रशिंग जो है वो इफेक्ट नहीं करती. ऑब्वियसली डेब्री एक्यूमुलेट हुआ होता है जिसको हम फ्लॉस करते हैं बिटवीन द टीथ, ठीक है? सो यू कैन ऑल्सो सी अ वीडियो ऑन यूट्यूब फॉर बेस्ट. Excuse me, ma'am, we can't hear you. अब आ रही है आवाज? जी अभी आवाज आ रही. आपने थोड़ा मिस कर दिया फ्लॉसिंग का पार्ट के वीडियो देखने के बाद. आपके पास कोई डिवाइस अच्छा, हाँ, होती है? ठीक है. मैं ये आपको बताई थी, नॉर्मली फार्मेसीज पे हमारे पास फ्लॉसिंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स ले सकते हैं. दे कैन आस्क द फार्मासिस्ट टू गिव देम डेंटल फ्लॉस. डेंटल फ्लॉस के अंदर एक थ्रेड लाइक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि हम अपने दांतों के अपनी फिंगर्स के अराउंड रैप करते हैं. हमारी जो इंडेक्स फिंगर्स होती हैं राइट और लेफ्ट हैंड की, ठीक है, और वो हम अपने दांतों के बीच में यूज करते हैं. उस डेंटल फ्लॉस को रैप अराउंड करते हैं इंडेक्स फिंगर के, ठीक है, दोनों राइट और लेफ्ट हैंड की फिंगर्स पे, एंड देन वी यूज देम बिटवीन आवर टीथ टू रिमूव द डेब्री. I would recommend to watch a YouTube video on the best dental flossing techniques, because visual representation से जितना आपको अच्छा समझ आएगा, वो खाली verbal presentation से शायद आपको इतना ना पता चले. So what are the best innovations in dental care that can significantly improve oral health and consequently quality of life? जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो कि
बहुत अर्ली लाइफ से या अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ से हम डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, या ओरल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हम अपनी डेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। इसमें हमारे पास फ्लोराइड वार्निशेस आ जाते हैं, केरीज प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास डेंटल कॉम्पोजिट्स आ जाते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं टू जो हमारे दांतों पे कुछ हमारे जो दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली मोलर्स फॉर एग्जाम्पल जो हमारे दाढ़ें होती हैं, ठीक है, दे हैव अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रोन टू हैविंग केरीज, right? So we can use some materials, for example, composites, microfill composites in those areas to prevent the development of dental caries. दूसरी चीज ये है कि हम कुछ ऐसे प्रिवेंटिव प्रोसीजर्स भी यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम केरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको फ्लॉस बताया, या वाटर फ्लॉसेस आ चुके हैं जो कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो फॉल करते पार्टिसिपेंट आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, नहीं तो फिर हम मीटिंग को कंक्लूड करेंगे। आप अपना हैंड रेस करें या आप चैट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो हम नॉर्मल ब्रश करते हैं टीथ को और जो माउथ वॉश है, तो इनमें क्या डिफरेंस है और किस टाइम करना चाहिए, रात को सोने से पहले या उठने के बाद? तो इनका क्या लॉजिक है, जी काइंडली अगर आप डिटेल में बता देते हैं। ठीक है। देखिए, एवरीबडी इज अवेयर कि जो हमारा एक डेंटल ब्रश और माउथ वॉश इज अ लिक्विड मैकेनिज्म ऑफ कीपिंग गुड ओरल हाइजीन, और जो हमारी जो ब्रश है, जो कि हमारी ब्रशिंग है बेसिकली, वो हमारे पता है वी यूज अ डेंटल ब्रश टू ब्रश आवर टीथ, ठीक है। सो डेंटल ब्रशिंग जो है वो नॉर्मली रिकमेंड हम करते हैं सुबह नाश्ते के बाद और एक रात को सोने से पहले। नॉर्मली जब हम रात को सोने से पहले ब्रश करते हैं और सुबह हम उठते हैं तो ऑब्वियसली वी हैवंट ईटन एनीथिंग, तो हम अगर सुबह सुबह उठते साथ ही ब्रश करेंगे तो हम किस चीज को ब्रश करें, बिकॉज वी हैवंट ईटन एनीथिंग और रात को हम ऑलरेडी ब्रश कर चुके हैं, ठीक है। आई नॉर्मली रिकमेंड टू माई पेशेंट्स कि एक तो रात को सोने से पहले जरूर करें ब्रश, ठीक है। दूसरी चीज, सुबह जब नाश्ते के बाद ब्रश करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू कि उठते साथ ही आप सुबह सुबह ही ब्रशिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज कि जब आप एक डेंटल ब्रश जब आप खरीदने जा रहे हैं बाजार में, ठीक है, तो कोशिश करें कि जो ब्रिसल्स हैं ब्रश के वो इतने हार्ड ब्रिसल्स वाले ब्रश ना हो, ठीक है। मीडियम या सॉफ्ट ब्रिसल्स हों, क्योंकि वो जो है थोड़ा देयर सॉफ्टेड फॉर द टीथ और दांतों के लिए इतने अब्रेसिव नहीं होते। दूसरी चीज ये कि जब आप डेंटल ब्रशिंग कर रहे हैं तो एक प्रॉपर टेक्निक को अडॉप्ट करें। नॉर्मली पेशेंट्स, अगर आपने देखा होगा, पेशेंट्स बहुत अग्रेसिव मोशंस यूज करते हैं टू क्लीन देयर टीथ। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, इसकी वजह से होता ये है कि हमारे जो दांतों के मसूड़े हैं, जो हमारे गम्स हैं, वो रिसीड करना शुरू हो जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डोंट वांट, राइट? सो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ब्रशिंग योर टीथ। दूसरी चीज ये कि जो हमारा माउथ वॉश है, ठीक है, दैट इज लिक्विड, ठीक है, और वो हम नॉर्मली 2 वीक्स के लिए ही रिकमेंड करते हैं। आई रिकमेंड माई पेशेंट्स टू यूज माउथ वॉश फॉर नॉट मोर देन 2 वीक्स एट अ स्ट्रेच, और फिर कुछ हफ्तों के बाद वो दोबारा यूज कर सकते हैं। सो प्रॉपर माउथ वॉश टेक्निक अगर आपने अडॉप्ट करनी है, उसमें ये होता है कि जो माउथ वॉश, अगर आप कोई लिस्ट्रीन है, ठीक है, या क्लोरहेक्सिडिन, उसका आपने टैप लेना है, ठीक है, एंड फिल हाफ ऑफ द माउथ वॉश along with half of the water, ठीक है। और उसको जब आप और यू कैन लाइक पुट इट इन योर माउथ एंड गार्गल विद इट, ठीक है, और वो आप जो है 2 से 3 दफा उसके साथ मतलब उसको आप लाइक गार्गल कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है, एंड यूज इट ट्वाइस अ डे एंड फॉर 2 वीक्स ओनली इफ यू आर यूजिंग इट एट अ स्ट्रेच, ठीक है। ओके मैम, और व्हाट अबाउट द टंग क्लीनर्स जो हमारे जी। ब्रशेस में होते हैं? टंग क्लीनर होते हैं हम्म। ब्रशेस के, तो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते, तो व्हाट डू यू रिकमेंड के वो यूज करनी चाहिए नहीं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ब्रशेस जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, अगर ब्रशेस का जो बैक साइड अगर आप देखें तो वो उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है विच यू कैन यूज ऑन योर टंग टू स्क्रेप द टंग, ठीक है। वो रिकमेंडेड है, डेफिनेटली रिकमेंडेड है। आई रिकमेंड ऑल माई पेशेंट्स टू स्क्रेप देयर टंग एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे कुछ जनरल फूड पार्टिकल्स हैं जो जुबान पे भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो एक बेहतर यही है कि अगर आप उसको स्क्रेप करें तो वो जो पार्टिकल जो दांत के अंदर भी, सॉरी, जुबान के अंदर जो जा चुके हैं, एम्बेड हैं, वो उससे वो भी रिमूव किए जा सकते
ओके मैम, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। आई होप के आपके क्वेश्चंस नहीं है तो मैम आज का सेशन हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये डिटेल में गाइड किया, क्योंकि जी हमारे पास डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से लोग हैं और सबको चांस तो नहीं होता कि वो डेंटिस्ट बने या डॉक्टर की पढ़ाई करें। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतना गाइड किया और चीज़ें बताई और थैंक यू इतने सो मच टू यू। लो लेवल पे बताई। थैंक यू। जी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच टू यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्च्युनिटी और आई रियली होप कि ये जो मैंने सेशन प्रेज़ेंट किया है वो क्लियर हो, ऑडिबल हो। ऑब्वियसली बीच में प्रेज़ेंट करते हुए कोई ना कोई मिस्टेक हो गई होगी डेफ़िनिटली, क्योंकि मैं एक बहुत फ्लो में जा रही थी। तो वो मुझे इसके लिए प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई। लेकिन ये कि आई एम रियली थैंकफुल टू सिंध एजुकेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्च्युनिटी टुडे। यू आर वेलकम एंड और थैंक यू सो मच। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम अ, कोई एक न्यू सेशन भी आपके साथ रखेंगे जो इसका ही कंटिन्यूशन में होगा। इंशाल्लाह, चलो, थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर Thank you to ज्वाइनिंग। everyone as well. थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। अल्लाह हाफिज।